ہزار داستان، جس کے مصنف انور علی کی ہیں۔ حصہ دوم۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ نفیسہ بیگم کا دل لرز اٹھا۔ وہ گھبرا کر بولی، دیکھ بیٹا، کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا، ہو سکے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اچھا ماں۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ ڈاکٹر ذاکر انصاری کے کمرے میں داخل ہوا تو کمال رائے کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑے اتفاق سے اس سے ہاتھ ملایا اور حال احوال پوچھا۔ رائے صاحب، آپ کی بچی کا کیا حال ہے؟ حال احوال پوچھنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نے سوال کیا۔ یہ سوال سن کر کمال رائے کو جھٹکا لگا۔ اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی ماروی بچی کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہوئی اور اس کے انتقال کے کچھ دیر بعد بچی بھی چل بسی تھی، اور اب وہ وہی ہسپتال جہاں ماروی کو لایا گیا تھا۔ کمال رائے نے اپنی حیرت کو بڑی کامیابی سے چھپایا۔ وہ اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اس سے الٹا سوال کرنے بیٹھ جائے، وہ چونک جائے۔ ڈاکٹر، وہ بچی تو مر گئی، کمال نے افسردگی سے کہا۔ ارے کیسے؟ ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر سمینا نے آپ کی بیوی کی ڈیلیوری کا کیس کیا تھا، میں بھی موجود تھا ہسپتال میں۔ روشن رائے صاحب خود آئے تھے۔ آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ کراچی میں ہیں۔ آپ کی بچی کو میں نے بھی دیکھا تھا۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بچی مکمل طور پر صحت مند تھی۔ ماشاءاللہ، ایسی تندرست بچی آج کل کہاں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ خوبصورتی، اس کی تو کوئی جواب ہی نہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ اتنی پیاری بچی، وہ کیا ہوا تھا اسے؟ میرے خیال میں اسے نظر لگ گئی۔ کمال رائے نے ان باتوں کے جواب سے یہی مطلب نکالا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ اور آپ کی بیگم، ان کا کیا حال ہے؟ یہ ایک اور پریشان کن سوال تھا۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹمپریچر اور کمزوری ہو گئی ہے۔ میں انہیں کراچی لے جا رہا ہوں۔ میں آپ کے شہر کچھ کام سے آیا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ رائے صاحب، آپ کی بڑی ہی مہربانی ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو کسی لیڈی ڈاکٹر کو آپ کے ساتھ کروں؟ نہیں ڈاکٹر، اس کی ضرورت نہیں، بس آپ بخار وغیرہ کی دوا لکھ دیجئے، میں لیتا ہوا نکل جاؤں گا۔ کمال رائے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آج کی رات گزر جائے، پھر کل صبح تو میں ویسے بھی کراچی چلا ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، میں آپ کو دوائیں لکھ کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس نسخے سے صبح تک وہ بھلی چنگی ہو جائیں گی، ڈاکٹر انصاری نے بہت پر امید ہو کر کہا۔ پھر ڈاکٹر نے چند دوائیں لکھ دیں، نسخہ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کمرے کے دروازے تک اسے چھوڑنے گیا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے تو ہاسپٹل چل رہا تھا، ان کی پذیرائی بہت ضروری تھی۔ ماں، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ کمال رائے نے ماں کے گھٹنے پکڑ لیے اور نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، اوپر بیڈ پر آ جاؤ۔ نہیں ماں، میں ٹھیک ہوں، تم میری بات کا جواب دو۔ ہاں پوچھو۔ ماں، جس ہسپتال میں میری ماروی اور بچی کا انتقال ہوا، وہاں کے بڑے ڈاکٹر کو ان دونوں کی موت کے بارے میں کوئی خبر نہیں، کمال رائے نے انکشاف کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ ایسا اس طرح ہو سکتا ہے ماروی میری اور بچی، ان دونوں کی موت ہاسپٹل میں نہیں ہوئی، لیکن تمہارے بابا نے مجھے یہی بتایا تھا۔ ہاں ماں، بابا جھوٹے ہیں۔ کمال رائے نے ماں کے گھٹنے چھوڑ دیے اور سامنے پڑے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ باپ کو جھوٹا کہتے ہو؟ کیسے بیٹھے ہو تم؟ جھوٹے باپ کو جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کمال نے تلخی سے کہا۔ ماں، تم جانتی ہو میری بچی کس قدر خوبصورت تھی؟ وہ اتنی صحت مند اور حسین تھی کہ کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ماں، میں اب ایسی بچی کہاں سے پاؤں گا، کہاں سے لاؤں گا؟ میرے باپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور ماں تم اس جرم میں بریک ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں رکا نہیں۔ نفیسہ بیگم کہتی رہ گئی، سنو سنو، رکو، مگر نہیں۔ کمال رائے حویلی کی پچھلی طرف بنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے، کیسے ہے۔
اس کی بیوی اور بچی کا انتقال ہوا مگر اسے اطلاع نہیں دی گئی۔ ماں نے خبر کروانی چاہی تو باپ نے منع کر دیا، اس کی بھلائی کے لیے۔ بھلا اس میں اس کی کیا بھلائی تھی؟ یہ بات وہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ پھر جنازوں کو حویلی میں نہیں لایا گیا۔ ماں نے اپنی پوتی اور بہو کا آخری دیدار نہیں کیا، اس میں بھلا کس کی بھلائی تھی؟ گورکھن نے قبریں نہیں کھودی، اسے اپنے گھر میں قید کر دیا گیا۔ جنازے کس سے قبر میں اتارے یہ بات خیرو کو بھی معلوم نہیں۔ آخر گورکھن کو ان قبروں سے دور کیوں رکھا گیا؟ اس میں کس کی بھلائی تھی؟ ماں نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچی کا انتقال ہسپتال میں ہوا۔ جس ہسپتال میں انتقال ہوا ڈاکٹر نے کچھ اور بیان دیا۔ وہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس نے ڈاکٹر سے جاتے ہی ماروی اور بچی کے انتقال کا ذکر کر کے اس کے بارے میں معلومات نہیں لی، ورنہ وہ ہسپتال گیا اس ارادے سے تھا کہ ڈاکٹر سے ماروی اور بچی کی بیماری کے بارے میں پوچھے، معلوم کرے کہ ان دونوں کا انتقال کیسے اور کیوں ہوا۔ اب تک کی تحقیق اور جستجو نے جو بات سامنے لائی وہ یہ تھی کہ ماروی اور اس کی بچی کی لاش کسی نے بھی نہیں دیکھی، تو آخر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، ٹہلتا رہا۔ تب یکایک اس کے ذہن میں اپنے باپ روشن رائے کے فرشتے آئے۔ وہ ان دونوں کو بابا کے فرشتے ہی کہتا تھا۔ ان دونوں کا نام تھا رولی اور ہولی۔ وہ دونوں جڑوا بھائی تھے۔ ان دونوں کی شکلوں میں مشابہت تھی، بلکہ کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ایک کی بڑی مونچھیں تھیں تو دوسرے کی مونچھیں صفا چٹ۔ ایک نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے تو دوسرے نے اپنے سر کو فارغ البال کر رکھا تھا۔ قد دونوں کے برابر، جسامت ایک جیسی، ناٹے موٹے، دیکھنے میں دونوں رف اینڈ ٹف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بابا کے اٹھنے سے لے کر بیڈ پر جانے تک ساتھ رہتے تھے۔ بابا کے ساتھ جہاں رولی نہیں ہوتا تو وہاں ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا۔ یہ دونوں بابا کے خاص آدمی تھے، اتنے خاص کہ جو بات بابا بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ یہ دونوں جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کمال رائے ان دونوں کو بابا کے فرشتے کہتا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں روشن رائے کا اعمال نامہ جو تھا، ابھی تک اس نے ان دونوں میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں۔ ویسے ان دونوں میں سے کسی کو ہاتھ لگانا، چھونا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ ان پر ہاتھ ڈالتے ہی بابا کو خبر ہو جاتی۔ یہ خبر ان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے باپ کے مزاج کا اچھی طرح پتا تھا۔ ایک پتھر دل شخص تھا، صفاقی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اپنے کام میں مداخلت یا کسی قسم کی رکاوٹ وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن وہ اپنی انا کے پیچھے کسی اکلوتی تو دور وہ اسے اولاد ماننے سے بھی انکار کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں ان دونوں کو زیر تفتیش لانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل اس کے پاس رہ جاتا تھا۔ اس حل پر عمل کرنے کے لیے وہ اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ وہ ٹہلتا اور سوچتا رہا اور بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ ہی گیا۔ روشن رائے اس وقت ہوا خوری آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے ہولی اور رولی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں جدید اسلحے سے لیس تھے۔ روشن رائے گھوڑے کی پیٹھ پر کمر اکڑائے، گردن اکڑائے اور سر اونچا کیے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی جاگیر اور زمینوں میں گھوم کر خوب خوش ہوتا تھا۔ اپنی جاگیر کو دیکھ کر اس کا رواں رواں سرشار ہو جاتا تھا۔ جب اس کی طبیعت میں اذلال یا تقدر پیدا ہوتا تو وہ فوراً رولی ہولی کو ساتھ لے کر اپنی جاگیر کی سیر کے لیے نکل جاتا۔ زمینوں کے ویسے ہی الو کی طرح گول تھیں، ان گول آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ مزید پھاڑ لیا کرتا تھا۔ سیر کرتے ہوئے اگر اسے اپنی پسند کی کوئی شے دکھائی دے جاتی تو وہ رولی کی طرف اشارہ کر کے کہتا، دیکھو بھائی ہماری زمینوں کی شان۔ رولی ہولی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگتی کہ زمینوں کی شان کہہ کر کس شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اس شان کو اچھی طرح تاڑ لیتے اور ان میں سے ایک اس شان کے تعاقب میں رہتا جب تک اس شان کو مالک کے حضور پیش نہ کر دیا جاتا۔ ہوا خوری روشن رائے کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس مشغلے کے دوران زمینوں کی شان ہی نہیں اور بھی فیصلے سنا دیے جاتے تھے، اور رولی ہولی ان احکامات پر اس طرح عمل کرتے جیسے وہ انسان نہ ہو، روبوٹ ہوں۔
जज्बात से आ रही हूँ। इस हवेली में पहले रॉली आया था। हुलिया तो खैर इसका वही था जो आज था, गंजा सर, मोटी मूछें, लेकिन चेहरे पर आज जैसी खबासत न थी। मिस्कीन सूरत बनाए वो रोशन राय के हजूर पेश हुआ। अब से कोई 10 वर्ष पहले उसका कोई करीबी रिश्तेदार रोशन राय का मुलाजिम था। उसके जरिए रोशन राय तक रॉली पहुंचा और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रोशन राय ने इससे कुछ पूछने से पहले ऊपर से नीचे तक बगौर उसका मुआयना किया। वो उसे एक ही नज़र में काम का आदमी दिखाई दिया था। उसने फौरन फैसला कर लिया था इस बंदे को हवेली की फौज में ज़रूर शामिल करेगा। लिहाजा उसने शुरू से ही नरम लहजा इख्तियार किया। हाँ बाबा, अब कुछ बोलो या हाथ जोड़े ही खड़े रहोगे? मालिक, एक फरियाद लेकर आया हूँ। हाँ बाबा बोलो, हम इधर किस लिए बैठे हैं? हम लोगों की फरियाद नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हाँ बाबा बोलो ना, तुम्हें किसने परेशान किया है? क्या फरियाद है तुम्हारी? रोशन राय ने उसका हौसला बढ़ाया। मालिक, मुझे मेरे चाचा ने बहुत सताया है, उसने फरियाद की। अच्छा बाबा, अभी वो क्या कहता है? कोई ज़मीन वमीन का झगड़ा है क्या? हाँ मालिक, ज़मीन का झगड़ा है। आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है वो? नहीं मालिक, ज़मीन उसी की है। इंकशाफ हुआ। अरे बाबा, ज़मीन उसकी है तो फिर झगड़ा कैसा? रोशन राय ने अब ज़रा हैरान होकर पूछा। मालिक, मेरा चाचा अकेला है, न जोरू न बच्चे, उम्र भी बहुत है। मैं कहता हूँ मेरे हवाले कर दो तो नहीं करता। देखे ना मालिक, ये ज़मीन कल भी मेरे ही नाम होनी है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? रॉली ने बड़ी मिस्कीन सूरत बनाकर कहा। ये सुनकर रोशन राय ने एक जोरदार कहका लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बाबा ये बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी फरियाद बड़ी जायज़ है, पर बाबा अभी मैंने क्या करूं ये बताओ। देखो, किसी चीज़ को हासिल करने का एक ही तरीका मेरी नज़र में है। अगर कोई तुम्हारा हक देने पर राज़ी ना हो तो छीन लो। क्या चाचा तुम्हारी होने वाली ज़मीनों पर सांप बना बैठा है तो बाबा लाठी उठाओ और उसका सर कुचल दो। जवान हो, तुम्हारे लिए काम मुश्किल तो नहीं। पुलिस से डरता हूँ बाबा, रॉली ने साफ कोई से कहा, और पुलिस हमसे डरती है? रोशन राय ने सवाल भी किया और जवाब भी दिया। जी मालिक, रॉली ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। पुलिस को हम देख लेंगे, तुम अपने चाचा को देखो। रोशन राय ने फैसला सुनाया। रॉली खुश हो गया। वो रोशन राय की सरपरस्ती हासिल करने के लिए ही तो यहाँ आया था। उसके रिश्तेदारों ने यही मशवरा दिया था कि अगर मालिक ने तेरे सर पर हाथ रखा तो तेरा बेड़ा पार। मालिक ने यूं ही उसके सर पर हाथ नहीं रखा था। इतनी बड़ी जागीर थी, जागीर को संभालने के लिए हर तरह के बंदों की ज़रूरत थी। रॉली उन्हीं बंदों में से एक था। बस फिर क्या था, मालिक का आशीर्वाद मिलते ही उसने अपने चाचा का कल्याण कर दिया। अपने चाचा को कत्ल करके जब वो फरार होकर पनाह की तलाश में हवेली की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसे पुलिस ने धर लिया। साथ ही आले कत्ल भी उससे बरामद कर लिया। थानेदार को रोशन राय ने यही हुक्म जारी किया था। रॉली की गिरफ्तारी की रोशन राय का फौरन ही खबर मिल गई, लेकिन उसने 2 रातों तक रॉली को कोई खबर न ली। वो थाने के लॉकअप में बंद मालिक की तरफ से किसी मदद का इंतजार करता रहा। वो रातें गुजरने पर उसके छक्के छूट गए। वो अपने चाचा के कत्ल के इल्जाम में आले कत्ल के साथ ही पकड़ा गया था और अब उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। जब नाउमीदी अपनी हदों को छूने लगी तो रोशन राय का चेहरा चमका। उसने थानेदार से दिखावे के लिए मुकमुका किया, जाहिर किया कि उसने उसे 25,000 के तौर पर नजराना दिया है और उसे छुड़ाया है, और ये कहकर हमेशा के लिए उसे दामे उल्फत में जकड़ लिया। रॉली रोशन राय के लिए बहुत काम का आदमी साबित हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशन राय का खास आदमी बन गया। 1 साल गुजरने के बाद रॉली ने अपने जुड़वा भाई हॉली का जिक्र किया। वो उस वक्त कराची में था और वहाँ हर तरह की वारदातों में मुलव्वस था। वो कराची से फरार होकर गांव पहुंचा तो रॉली ने उसे रोशन राय के सामने पेश करने का इरादा किया। जब रोशन राय ने हॉली के बारे में सुना तो उसे वो भी काम का आदमी मालूम हुआ और उसने फौरन रॉली से कहा, हाँ बाबा लाओ उसे भी, अभी हम देखें कराची में वारदात करने वाले को।
हॉली को एक नज़र देखते ही रोशन राय ने उसे भी अपने पास रखने का इरादा कर लिया। इस तरह जल्द ही दोनों भाई रोशन राय के एतमाद के बंदे बन गए। एक तवील अरसे से वो दोनों रोशन राय के पास थे। वो दोनों साय की तरह उसके साथ रहते थे, इसीलिए कमाल राय ने उन्हें बाबा के फरिश्ते का नाम दिया था। ऐसे फरिश्ते जिनके बयान पर बाबा पकड़े जा सकते थे। रोशन राय ने अचानक दौड़ते घोड़ों की लगाम खींचकर उसे रोका और घोड़े का रुख जरा सा मोड़ कर देखा। रॉली और हॉली ज्यादा पीछे ना थे। वो चंद हमों में रोशन के नजदीक पहुंच गए और खामोशी से उसकी तरफ देखने लगे। रोशन राय ने अपने फरिश्तों की तरफ बारी बारी गौर से देखा और फिर बड़ी फिक्रमंदी से बोला, बाबा, कमाल राय की समझ नहीं आ रही, अभी तुम लोग उस पर नजर रखो। जी मालिक, रॉली ने सादतमंदी से कहा। देखो बाबा, जरा होशियारी से, उसे पता ना पड़े कि कोई उसके पीछे लगा है, वरना वो उसे मार देगा। जब उसे गुस्सा आ जाए तो फिर वो कुछ नहीं देखता। रोशन राय ने अपने बेटे के मिजाज से वाकफियत जाहिर की। जी मालिक, आप फिक्र न करें, इस मर्तबा हॉली बोला, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। आओ फिर चलें, शाम होने को है। ये कहकर रोशन राय ने अपने घोड़े को एड़ दी और उसका घोड़ा देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। कमाल राय ने खैरू को काम पर लगा दिया। खैरू जानता था यह खतरनाक काम है। अगर इस काम की बड़े मालिक को भनक भी पड़ गई तो वो बीवी बच्चों समेत उसे कुत्तों के आगे डलवा देंगे। उधर बड़े मालिक थे तो इधर छोटे मालिक थे, वो भी किसी अजाब से कम न थे। अगर वो काम से इनकार करता तो जान फिर भी महफूज न थी। एक तरफ आग थी तो दूसरी तरफ खाई। उसने अपनी जान जोखों में डालकर कमाल राय का साथ देने का इरादा कर लिया। खैरू को कमाल राय से हमदर्दी हो गई थी। वैसे भी वो छोटे मालिक थे, नौजवान थे। वो फातहा ख्वानी के लिए हाथ उठाते तो उनकी आंखें भर आती थीं। इन कब्रों में क्या राज था, उसे इनसे दूर क्यों रखा गया था, इस तजस्सुस ने भी उसे इस काम पर मजबूर किया था। इसने 8-10 फीट के फासले से एक महफूज जगह से सुरंग खोदना शुरू की। वहां झाड़ियां बहुत थीं। एक नज़र देखने में कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यहाँ से सुरंग खोदी जा रही है। वैसे भी किसी के जहन में इस तरफ का ख्याल आ ही नहीं सकता था। अगर कब्रों को पुख्ता ना कर दिया गया होता तो सुरंग खोदने की जरूरत ना पड़ती। खैरू रातों रात कब्र खोद कर दोबारा इसको जूं का तूं बंद कर देता। अब पुख्ता कब्र को तोड़ा नहीं जा सकता था। अगर तोड़ा जाता तो चंद घंटों में इसकी तामीर मुमकिन न थी। अगर किसी तरह कब्र को पुख्ता कर भी लिया जाता तब भी राज खुलने का खतरा तो था। खैरू रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक सुरंग खोदने का काम करता था। उसे 2 रातों में सुरंग को मारवी की कब्र तक पहुंचा दिया। फिर जब कमाल राय प्रोग्राम के मुताबिक फजर के वक्त कब्रिस्तान पहुंचा और सुरंग में दाखिल होकर उसने इमरजेंसी लाइट में कब्र का मुआयना किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। कब्र खाली थी, इसमें मारवी की लाश मौजूद न थी। वो सुरंग बंद करने का हुक्म देकर अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली वापस आ गया। एक पहरेदार ने गाड़ी का हारन सुनकर हवेली का दरवाजा खोला। वो गाड़ी को हवेली की असल इमारत तक ले गया। हवेली पर सन्नाटा तारी था। अगरचे आसमान पर हल्की हल्की रोशनी नमूदार हो गई थी, लेकिन हवेली के मकीन अंधेरे में डूबे पड़े ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। इस मकीन थे ही कितने, गिनती के 3, एक बाबा, एक माँ और एक वो, 3 मकीन। और हवेली इतनी बड़ी कि बैक वक्त 300 आदमी बआसानी समा जाएं। इस हवेली में मुलाजमों से रौनक थी। अगर वो ना होते तो हवेली पर हू का आलम होता। कमाल राय को इस सन्नाटे से सख्त चिढ़ थी। यही वजह थी कि इसने हॉस्टल में रहना पसंद किया था। चाहता तो वो अपना डिफेंस का बंगला इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो फ्लैटों में रहता था। एक हंगामा खैर जिंदगी गुजारना चाहता था। मालवी को भी इसने इसीलिए हवेली में छोड़ा था। वो मियाँ बीवी का भला इतने बड़े बंगले में क्या करता। मालवी खुद भी अकेला नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मालवी की हवेली में रिहाइश कमाल राय के लिए फिक्र का बायस न बनी। लेकिन अब वो पछताता था, काश उसने मालवी को हवेली में ना छोड़ा होता। अब यही मामला खासा उलझ गया था।
मालवी की लाश कब्र में मौजूद न थी। लाश की गैर मौजूदगी से ये बात सामने आई थी कि मालवी का इंतकाल नहीं हुआ। उसने बच्ची को कब्र नहीं खुदवाई, लेकिन इस बात का उसे पक्का यकीन था कि वो कब्र भी खाली ही होगी। अगर दोनों माँ बेटी जिंदा थीं तो उन्हें मुर्दा क्यों ज़ाहिर किया गया? कब्र में लाश न होने की वजह को तक़वियत मिली थी। अब कम से कम उसे अपनी बीवी और बेटी के मिलने की उम्मीद तो हो ही गई थी। कमाल राय को हवेली आए 5-6 दिन हो गए थे। अभी तक इसने नाश्ता नफीसा बेगम के साथ नहीं किया था, मौका ही नहीं मिला था। आज सुबह नफीसा ने उसे पैगाम भेजा था कि वो नाश्ता उसके साथ करेगी। वो अपने हाथों से ट्रॉली ढकेलती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। वो अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकला था और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था कि आईने में उसे अपनी माँ की सूरत दिखाई दी। बाल बनाते बनाते वो रुक गया और अपनी माँ का चेहरा बगौर देखने लगा। नफीसा ने भी इसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस कर ली। वो धीरे से मुस्कुराई और ट्रॉली मेज के नज़दीक करके उस पर से नाश्ते का सामान उतार कर मेज पर रखने लगी। माँ, हवेली के सारे मुलाजिम क्या हुए? कमाल राय ने पूछा। सब हैं। मैंने सोचा आज अपने बेटे को अपने हाथ से नाश्ता कराऊं। नफीसा प्यार से देखते हुए बोली। अच्छा माँ, तुम्हारी मेहरबानी, कमाल ने मेज की तरफ आते हुए कहा। अरे बेटा, अब तो इतना बाइखलाक हो गया है कि माँ का भी शुक्रिया अदा करेगा। बुरी बात है, उसने आम से लहजे में कहा। हाँ, बहुत बुरी बात, नफीसा बेगम ने कहा। आइंदा मुझसे इस अंदाज और लहजे में बात ना करना। अच्छा, माफ़ी, कमाल राय ने हाथ जोड़े। जा, माफ़ किया, नफीसा ने मुस्कुराकर कहा। माँ, क्या वाकई तुम कुछ नहीं जानती हो? कमाल राय का लहजा एकदम बदल गया। अब क्या हुआ माँ? तुमने आखिर मुझसे ये क्यों छुपाया? उसका लहजा शिकवा भरा था। बेटा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। नफीसा बेगम का दिल फिक्र में डूब गया। मेरा यकीन करो। किस बात का यकीन करूं और किसका ना करूं, मुझे समझ नहीं आता। कमाल के लहजे में किसी हद तक सख्ती आ गई। माँ, मुझे अब यकीन हो गया है कि मालवी और मेरी बेटी जिंदा हैं। जिंदा है सच? नफीसा के चेहरे पे खुशी आई। पता नहीं ये खुशी सच्ची थी या झूठी। हाँ, मालवी की कब्र मसनूई बनाई गई है। मसनूई क्या मतलब? क्या अब कब्रें भी 2 नंबर की बनने लगी हैं? हाँ माँ, कब्र में मालवी की लाश नहीं है, उसने इंकशाफ किया। है? नफीसा बेगम ने हैरान होकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। माँ, आखिर तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती? कमाल ने अपनी माँ को। नफीसा बेगम अभी कुछ कहने ही वाली थी कि एक मुलाजमा घबराई हुई दाखिल हुई। क्या हुआ? कमाल ने फिक्रमंद होकर पूछा। वो मालकन, वो कब्रिस्तान में आग लग गई है, मुलाजमा ने फूली हुई सांसों के दरमियान बताया। कब्रिस्तान में आग लग गई? अरे क्या बकवास कर रही है? नफीसा बेगम ने मुलाजमा को डांटा। कब्रिस्तान में आग? ओ माय गॉड! ये कहकर कमाल राय नाश्ता छोड़कर खड़ा हो गया। बेटा, तुम नाश्ता करो, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ, वो देख लेंगे। नफीसा बेगम ने उठते हुए कहा। माँ, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, बाबा सो रहे होंगे, उन्हें सोने दें, मैं खुद जाकर देख आता हूँ क्या सूरत हाल है। नाश्ता आकर करता हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। उसने अपनी माँ के जवाब का इंतजार भी न किया। कमाल राय की गाड़ी हवेली के दरवाजे पर मौजूद थी। गाड़ी स्टार्ट करके उसने हवेली के 2 मुलाजमों को अपने साथ लिया और कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान में उसने जो कुछ देखा वो उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे था। खैरू का कच्चा घर पूरी तरह शोलों की लपेट में था। इसके अलावा मालवी और बच्ची की जाली कब्रों से भी शोले उठ रहे थे। ये बड़ा अंधुना। मैं कभी कब्रिस्तान में आतिश तदगी का नहीं सुना था। कोई खुदा बन गया था। उसने कब्रिस्तान को जहन्नुम रसीद कर दिया था। कब्रिस्तान में रोशन राय का एक फरिश्ता मौजूद था जो था। मुलाजमिन इधर से उधर भाग रहे थे। कब्रिस्तान में एक छोटा ट्यूबवेल लगा था और वो चलाया जा चुका था। कब्रिस्तान के पौधों को जिस पाइप से पानी दिया जाता था उससे आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। एक नाकाम कोशिश। रोली ने जब कमाल राय की गाड़ी देखी तो भागकर उसके पास पहुंचा और बड़े ही अफसरदा अंदाज में गर्दन झुका कर खड़ा हो गया। ये आग किसने लगाई? कमाल राय ने गुस्से भरे लहजे में पूछा। मालिक, कुछ पता नहीं, रोली ने सर झुकाकर जवाब दिया।
कमाल राय गाड़ी से उतरकर कब्रों की तरफ बढ़ने लगा। शोलों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़कर देखना चाहता था कि कब्रों के साथ क्या बर्ताव किया गया है। छोटे मालिक, रॉली तेजी से चलता हुआ उसके आगे आया। छोटे मालिक, आप उस तरफ ना जाए, वहां आग के सिवा कुछ नहीं है, लोग आग बुझा रहे हैं। छोटे मालिक, आप हवेली चलें, मैं वहां आकर सारी सूरत-हाल बताता हूँ। आप बेफिक्र रहें, ये जिसने भी किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रॉली, तुम 1 मिनट जरा मेरी गाड़ी के पास रुको, मैं जरा कब्रों को देखकर आता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई मेरी गाड़ी को आग न लगा दे। कमाल राय ने उसे तेज निगाहों से देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। दोनों कब्रें पूरी तरह शोलों की लपेट में थीं। शोले कब्रों से निकल रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे पुख्ता कब्रों को तोड़कर फिर आग लगाई गई हो। कमाल राय ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो आज सुबह ही कब्र का हाल देख कर गया था। वो ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि कब्रों को मस्मार करके क्यों आग लगाई गई है। आग लगाने वाला चाहता था कि कब्रों में मौजूद लाशों के वजूद को अदम वजूद में तब्दील कर दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ही कोई कब्रें पर फातिहा पढ़ने वाला आएगा। फिर अचानक उसे खैरू का ख्याल आया। वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका घर जलाकर किस बात का गुस्सा उतारा गया था। तब फौरन ही उसका माथा ठनका और वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने खैरू को सुरंग खोदते हुए देख लिया हो। वो जरूर यही बात है। ओह, इसीलिए उसे उसके घर जलाकर सजा दी गई है। लेकिन मसला सिर्फ इतना न था। रोशन राय के हुक्म के मुताबिक कमाल राय की निगरानी जारी थी। फजर के वक्त जब कमाल राय मारवी की कब्र का मुआयना करके वापस हवेली गया तो रॉली को फौरन खबर हो गई। वो इतला मिलते ही कब्रिस्तान पहुंचा और उसने खैरू को रंगे हाथों पकड़ा। वो बड़ी तेजी से सुरंग बंद करने के लिए फावड़े से कब्र में मिट्टी फेंक रहा था। रॉली ने गर्दन से पकड़कर उसे गाड़ी में डाला और हवेली ले आया। रॉली की बात अच्छी तरह मालूम थी उसे रोशन राय रात भर जागने का आदी है। उसे अजानों के वक्त नींद आती थी। जब इंसानों के जागने का वक्त होता था तो शैतान सोता था। अभी इसके कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट तो उसके कमरे की जलती ही रहती थी कि अब वो अंधेरे में नहीं सो सकता था। जब से सांप दिखाई देने लगे थे और उसकी नींदें उड़ गई थीं। कुछ उसके अमाल थे और कुछ उम्र का तकाजा। अब वो पहले सी नींद न रही थी। रॉली ने एक मखसूस अंदाज में दस्तक दी। इस दस्तक को रोशन राय अच्छी तरह पहचानता था। अभी वो सोने की तैयारी कर ही रहा था कि रॉली की आवाज ने उसे चौंका दिया। उस वक्त कैसे आ गया? उसने कोई ऐसा काम भी सुपुर्द नहीं किया था जिसकी तकमील करके वो यहाँ पहुंचा हो। बहरहाल उसने रिसाला बंद करके मेज पर रखा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। रॉली दरवाजे में मौजूद था। उसका चेहरा बता रहा था कुछ खास हो ही गया है। हाँ, क्या हुआ? रॉली इत्मीनान से पूछा। आओ आओ अंदर। रोशन राय के साथ सहमे सहमे वो भी अंदर आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हुआ। बोला, मालिक, कब्रिस्तान से खैरू को उठाकर लाया हूँ। रोशन राय ने उसकी आंखों में देखा। मालिक, खैर नहीं है। उसने छोटे मालिक को कब्र खोद कर दिखा दी है। रॉली ने धमाका किया। हैं बाबा? रोशन राय के चेहरे पर एकदम हवाइयां उड़ गईं। इतनी मेहनत से तैयार किया गया स्टेज जरा सी जरा हवा ने उड़ा कर रख दिया। अरे बाबा, ये खैरू ने क्या किया? उसने हमारा सारा खेल ही चौपट कर दिया। किधर है बाबा? वो हवेली में मौजूद है, अपने साथ लाया हूँ, रॉली ने बताया। ओह बाबा, उसको क्यों ले आए? बाबा, उसे तो कब्रिस्तान ही ले जाओ। पहले उसकी बीवी बच्चों को आग दिखाओ, फिर उसे भी भून दो। देखो उसका घर बार बच्चे बीवी कुछ न बचे। और हाँ, अब इन कब्रों का हमें क्या करना? बाबा, उन्हें भी जला दो, आग लगा दो। जाओ, जल्दी जाओ। इससे पहले कि कमाल राय हवेली से बाहर निकले सब कुछ जला दो। समझ गए बाबा? जी मालिक, अच्छी तरह समझ गया। फर्मा बरदारी से गर्दन हिला दी। बस तो फिर बाबा जाओ, अभी इधर क्यों खड़े? इस खैरू के बच्चे ने बड़ी ही बेवकूफ़ी का काम किया। रॉली फौरन अपने पंजों के बल घूमा और तेजी से कमरे से निकल गया। फिर उसने कब्रिस्तान पहुंचकर जो तमाशा किया वो अब कमाल राय के सामने था। कमाल राय कब्रों का हाल देखकर वापस आया। उसने रॉली को गाड़ी के पास मुस्तैदी से खड़े पाया।
वो मुलाजमीन को हाथ उठा उठा कर हिदायत दे रहा था। कमाल राय ने उसके नजदीक पहुंचकर गंभीर लहजे में पूछा, रॉली, खैरू कहाँ है? मालूम नहीं छोटे मालिक, रॉली ने बड़ी आहिस्तगी से जवाब दिया। कहीं आग लगाने वाले ने उसे घर समेत तो नहीं जला दिया? फिर इस घर में इसके बीवी और बच्चे भी थे। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना अजाब आएगा। कमाल राय ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ छोटे मालिक, आग बुझे तो कुछ पता पड़े। उसने मक्कारी से दोनों हाथ जोड़ लिए। वो अच्छी तरह जानता था कब्रिस्तान में क्या हुआ था। रॉली ने रोशन राय का हुक्म पाते ही सबसे पहले खैरू को उसके घर में लाकर एक चारपाई से बांधा। यही अमल उसने उसकी बीवी और बच्चों के साथ किया। इसके बाद उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर घर को दिया सलाई दिखा दी। खैरू बेचारा आंखों से रहम की अपील करता रह गया। बोल वो नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को लपेट में ले लिया। खैरू अपनी बीवी बच्चों समेत जिंदा जल गया। इतनी देर में इसके आदमियों ने पुख्ता कब्रों को तोड़ दिया था। वहां रॉली ने यही अमल दोहराया। टूटी कब्रों में सूखी लकड़ियां लाकर उन पर पेट्रोल डाल दिया। जलती हुई दिया सलाई कब्रों में जैसे जहन्नुम आग भड़का उठी। रॉली ने जिन लोगों के साथ मिलकर ये आग लगाई थी, अब वही लोग इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो आग कम बुझा रहे थे, शोर ज्यादा मचा रहे थे, इधर से उधर फजूल में दौड़ रहे थे। और ये बात कमाल राय ने अच्छी तरह। फिर वो वहां रुका नहीं। वहां रुककर क्या करता? जो कुछ होना था हो चुका था। दोपहर तक उसे ये बात मालूम हो गई थी कि खैरू और उसके बीवी बच्चे इस आग में जल मरे हैं। उसका दिल कट कर रह गया। आखिर उस गरीब का क्या कसूर था? कसूर तो था उसने अपनी बसात से आगे जाने की कोशिश की थी। वो शायद अपनी औकात भूल गया था। वो कमाल राय की बातों में आंख कर गुमराह हो गया था। उसने जाले कब्रों का राज फाश कर दिया था और मुमलिकत का राज फाश करने पे उसे मौत की सजा न होती तो और क्या होता।